Hello guys, I am Mayur Patel. Subject is Principle of Agronomy and Agriculture Meteorology, and today we are going to discuss on the topic of cropping system. Now, first thing is crop rotation. We have to rotate the crop yearly sequence by sequence. तो उसमें क्या होगा कि एक ईयर में हमने सीरियल क्रॉप सोइंग किया, दूसरे ईयर में लेग्यूमिनस क्रॉप किया, तीसरे ईयर में कोई फोडर और फॉरेज क्रॉप सोइंग किया, तो उससे सोइल फर्टिलिटी है, सोइल प्रोडक्टिविटी है, वो अच्छी खासी सुधरती जाएंगी. तो देखते हैं कि इस रिफर टू रिकरेंट सक्सेशन ऑफ द क्रॉप ऑन दी सेम स्पीसीज ऑफ लैंड आइदर इन ए ईयर और ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ईयरली हम क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं और ए लॉन्गर टाइम तक हम क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हैं इन क्रॉप रोटेशन. इट इज ए process of growing different crop in the succession on the pieces of land in a specific period of the time with an objective to get maximum profit from the last investment without impairing the soil fertility. In the rotation of the crop, leguminous crop like pulses, beans, pea, groundnut and Bengal gram are sown in the between season of the cereals like wheat, maize and pulmonary. जैसे हम leguminous crop है वो उसको सोइंग कर देंगे, पल्सीज है, बीन्स है, पीज है, तो उससे क्या होगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो फिक्स होगा ज़मीन में और उससे एक सोइल की अच्छी खासी फर्टिलिटी बढ़ती जाएगी और सोइल की कंडीशन सुधरती जाएगी. और उसके बाद जो हम व्हीट क्रॉप है, मेज क्रॉप है, परमिनेट है, उसको सोइंग करेंगे तो क्या होगा, तो जो फिक्स हुआ नाइट्रोजन सोइल में है, तो ये सब सीरियल क्रॉप को नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए है, तो उसके लिए उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा और अच्छा फर्टाइल सोइल मिल जाएगा और अच्छी तरह से ग्रोथ व्हीट और मेज और पर मिनट का हो सकेगा और हम अच्छा प्रोडक्शन ले सकेंगे और उसकी वजह से क्या होगा, हमारी इकोनॉमी भी बढ़ती जाएगी और अच्छी होती जाएगी. द लेग्यूमिनेसिस प्लांट आर ग्रोन अल्टरनेटली विद द नॉन लेग्यूमिनेसिस प्लांट टू रिस्टोर द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल एज वी डिस्कस्ड. When the cereal crop like rice, wheat, maize and grown in the soil, it use up a lot of nitrogenous salt from the soil. If the another crop of cereals is grown in the same soil, the soil become nitrogenous deficiency. So by the rotation and leguminous crop is grown, their plant have the ability to fix the atmospheric nitrogen to form nitrogenous compound through the help of the certain bacteria present in their root. और उससे क्या होगा, this nitrogen compound go into the soil and make it more fertile. Now this is photograph is indicating some crop rotation. Like in first we are showing the potatoes, then after we saw the corns, cabbage, peas, tomatoes, beans, root crop, squares. तो उससे क्या होगा, उसमें से कोई क्रॉप ऐसे हो गए जो नोड्यूल्स वाले होते हैं, तो उससे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो अच्छा सोइल में फिक्स कर सकते हैं और उसकी वजह से कोई क्रॉप ऐसे होते हैं कि उसको नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए है, तो वो अच्छी तरह से सोइल में से ले सकते हैं. देयर लाइक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर क्रॉप रोटेशन वी कैन टेक ए सोयाबीन्स, wheat, potato and haymaking. From the soybean, we can easily get the nitrogen from the atmospheric to the fix into the soil. And then after wheat is take a more nitrogen from the soil. So wheat can get a very good platform after sowing of soybean. Then after potatoes, hays, it give a very rotational life year by year. First year, second year, third year and fourth year. Then after characteristic of crop rotation or principle of crop rotation, it should be adaptable to the existing soil, climatic and economic factor. The sequence of the cropping adapting for any specific area should be based on the proper land utilization that can be maintain yield and reduce soil erosion. crop rotation करते जाएंगे तो soil erosion भी कम होता जाएगा, क्योंकि एक क्रॉप के बाद हम जो इरोजन ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से हमको कौन सा क्रॉप सोइंग करना चाहिए वो भी हम अच्छी तरह से डिसाइड कर सकेंगे. द रोटेशन शुड बी कंटेन ए सफिशिएंट एकरेज ऑफ द सोइल, इंप्रूविंग क्रॉप टू द मेंटेन एंड ऑल्सो बिल्ड अप द ऑर्गेनिक मैटर कंटेन इन द सोइल. इन एरियाज where the leguminous can be successfully grown, the rotation should be provided for the sufficient acreage of the legume to maintain the end supply of the crop. The rotation should be provide refuges and pastures for the livestock kept on the farm. रोटेशन में हम लाइव स्टॉक और पास्चर लेंगे तो वो भी एक अच्छा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि हम फार्मर्स है और
एग्रीकल्चर फार्मिंग के साथ एनिमल फार्मिंग भी, एनिमल हस्बेंड्री भी, हम एनिमल फार्मिंग भी करते हैं। तो उसके साथ क्या है, रेफ्यूजीज एंड पास्चर्स है, जो एनिमल के फीड्स है वो भी हम अच्छी तरह से प्रोडक्शन कर सकेंगे, और वो भी एक अच्छा खासा नाइट्रोजन का प्लेटफॉर्म बना रहता है। इट शुड बी सो अरेंज एज टू हेल्प इन द कंट्रोल ऑफ द वीड्स, प्लांट डिसीज एंड इंसेक्ट पेस्ट। तो इंसेक्ट पेस्ट को भी वो क्रॉप रोटेशन से हम कंट्रोल कर सकते हैं। पहले साल में हमने व्हीट सोइंग किया, तो व्हीट में जो पेस्ट ज़्यादातर रहती है, और नेक्स्ट साल में हम वो व्हीट ही क्रॉप सोइंग करेंगे, तो उससे क्या होगा कि व्हीट एंड व्हीट, तो व्हीट की जो पेस्ट है वो फिर से दूसरे क्रॉप में भी उसको अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, वही प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। तो व्हीट पॉपुलेशन है, उसके साथ साथ इंसेक्ट और पेस्ट का पॉपुलेशन भी बढ़ता जाएगा, और ईयरली वाइज इट इंक्रीज ए हाई अमाउंट। The crop with the taproot should be followed by those which have fibrous root system. This help in the porous and uniform use of nutrient from the soil, and root do not compact with each other for uptake of nutrient. Now, the selection of crop should be problem and need, demand and base according to need of the people of the area and family. तो हम क्रॉप रोटेशन करते जाएंगे, तो नेक्स्ट ईयर में कौन सी क्रॉप की ज़रूरत है, कौन से पाक हमको लेना चाहिए, वो भी एक अच्छी तरह से डिसाइड कर सकेंगे, और जिसकी फुलफिल करना है, जिसकी ज़रूरत है, नीड है, वो क्रॉप हम अच्छी तरह से ले सकेंगे। ऑन स्लोप लैंड अल्टरनेट क्रॉपिंग ऑफ द इरोजन प्रमोटिंग एंड द इरोजन रेजिस्टेंट क्रॉप शुड बी एडोप्टेड। अंडर ड्राई लैंड एंड लिमिटेड इरिगेशन ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप जुआर लाइक बाजरा, इन लो laying and food flood prone areas water stagnation tolerant crop paddy and jute should be adopted. Crops should suit for the farmers financial condition, soil and climatic condition. The crop of the same family should not be grown in the succession because they act like alternate host of the insect pest and disease pathogens and weeds associated with crops. As discussed, the crop of the same family, तो जो लेग्यूमिनस फैमिली है, तो उसका हम क्रॉप लगातार सोइंग करते जाएंगे, ईयरली वही क्रॉप हम सोइंग करते जाए, तो लेग्यूमिनस फैमिली में जो जो इंसेक्ट पेस्ट आते हैं उसका भी पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा, और बढ़ते बढ़ते वो उसको ज़्यादातर डैमेज करता जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा कि जो प्रोडक्शन हम चाहते हैं वो नहीं ले पाएंगे, तो इसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक भी बिगड़ती जाएगी। नाउ एडवांटेज ऑफ क्रॉप रोटेशन, देयर इज and overall increasing in the yield of crop due to maintenance of the proper physical condition of the soil and its organic matter. Rotation of crop help in the saving of nitrogenous fertilizer because leguminous plant grown during the rotation of the crop can fix atmospheric nitrogen in the soil with the help of nitrogen fixing बैक्टीरिया। जैसे हमने बात की, वैसे जो लेग्यूमिनेसिस क्रॉप है उसकी जो नोड्यूल्स है उसकी वजह से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो ज़मीन में फिक्स होता है, और उससे एक अच्छा खासा फर्टाइल सोइल बनती जाती है, और नेक्स्ट क्रॉप के लिए वो सूटेबल रहती है। और उस तरीके से हम ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप भी कर सकते हैं, और उसको जब फ्लावरिंग टाइम आए तब उसको इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, और अच्छा एक सोइल प्लेटफॉर्म बना सकते हैं नेक्स्ट क्रॉप के लिए। देन नेक्स्ट is rotation of crop help in the weed control and pest control. This is because weed and pest are very choosy about the host crop plant which they attack. When the crop is changed, the cycle is broken, hence the pesticide cost is reduced. तो पेस्टिसाइड कॉस्ट भी हम इस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि जो एक साइकिल में बन गया है कि पेस्ट एंड इंसेक्ट है वो डे बाय डे एंड ईयरली जो एक क्रॉप के बाद दूसरा क्रॉप हम सोइंग करते हैं, तो उसका जो इंसेक्ट पेस्ट आता रहता है उसकी वो साइकिल हम तोड़ देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, इंसेक्टिसाइड है पेस्टिसाइड से उसका कॉस्ट पूरा तरीके से बच जाएगा और सुधर जाएगा। देयर इज ए रेगुलरली फ्लो ऑफ इनकम ओवर द ईयर। प्रॉपर चॉइस ऑफ द क्रॉप इन द रोटेशन हेल्प टू प्रिवेंट soil erosion. It supplies various needs for the farmer and his cattle. Crop rotation adds diversity to an operation. Our slogan is that the supervisory work also become easier. जो अच्छी तरह से हम सुपरविजन कर करके जो काम करते जाएंगे तो वो बहुत ईजी हो जाएगा और अच्छी तरह से एक हमारी साइकिल बनती जाएगी। Now then, study of different crop rotation. We can take crop likewise cotton, then after groundnut or a sunham, sugarcane, groundnut, rice, gram or a sunflower, hybrid jowar, then after wheat or a jowar or a gram.
First sowing we jowar, then after sunflower, then groundnut. Groundnut type of crop is fixing the atmospheric nitrogen into the soil, so the improving soil fertility. Sunflower, potatoes, groundnut wheats, vegetable, sorghum, wheat, green gram, cotton, then after groundnut, bajra, cabbage, groundnut, cotton and groundnut. Here we can see easily groundnut is majorly sowing crop which is fixing the atmospheric nitrogen into the soil. Then selection of crop for a rotation. Here 1 year rotation, 2 year rotation and 3 year rotation. For the 1 year rotation we can take maize, then after mustard and then after rice and or a wheat. 2 year rotation we can take a crop like maize, then after mustard, then after sugarcane, then after fenugreek. So in 1 year maize and mustard, then second year sugarcane and fenugreek. We can easily sowing of crop and easily manage our soil. टाइप 2 ईयर रोटेशन में दूसरी तरह से हम लेते हैं मेज, पोटैटो, शुगर कैन एंड पीस, लाइकवाइज चिक पीस. 3 इयर्स रोटेशन राइस, व्हीट, मंग, मस्टर्ड, शुगर कैन, बरसीम, लाइक कॉटन ओट्स, शुगर कैन पीस, मेज, व्हीट. वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स आर ग्रोन इन एरिया क्लोज टू द सिटीज फॉर हायर इनकम. तो ये क्रॉप रोटेशन के साथ कभी कभी हम कोई सीज़न में वेजिटेबल भी सोइंग कर सकते हैं जो सिटी के आसपास रहते हैं वहाँ पे. तो जो हम इमीडिएटली वेजिटेबल निकाल के सिटी में बेच देते हैं तो एक अच्छी खासी हमारी इकोनॉमिक बढ़ सकती है. मिक्स क्रॉपिंग और क्रॉप मिक्सचर. It is the process of growing 2 or more crop together in the same pieces of land simultaneously. The cereals are usually mixed with the legumineous. Jowar or bajra mixed with the tuar, urad, green gram, black gram. Wheat is mixed with peas, gram or mustards. Cotton is grown mixed with tuar or sunflower. Here tuar is mixed with other crops. Objective: to get handy installment of cash returns, especially in the irrigated crop, to achieve better distribution of labor through the year, to utilize available space and nutrient to the maximum extent possible. जो हमारे पास ज़मीन बहुत नहीं है, 1 और 2 एकड़ ही ज़मीन है, तो उसके साथ हमको ऐसा कल्टीवेशन करना है तो एक साथ हम 2 या 3 क्रॉप मिक्स क्रॉपिंग में सोइंग कर देते हैं और उसके साथ साथ हम कल्टीवेशन करते हैं तो उसको सेपरेट करके अलग अलग क्रॉप कर सकते हैं. अदर देन एक क्रॉप ऐसा सोइंग किया, पहला उसका कल्टीवेशन हो गया, बाद में दूसरा क्रॉप सोइंग किया तो पहला क्रॉप की जो लाइफ साइकिल है उसके बाद दूसरा क्रॉप की लाइफ साइकिल, उसके बाद तीसरे क्रॉप की लाइफ साइकिल. तो तीनों क्रॉप हम सीक्वेंसली ले सकेंगे और हमारा अच्छा एक जो मैक्सिमम एक्सटेंट पॉसिबल यूटिलाइज अवेलेबल स्पेस जो हमारे पास ज़मीन है उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकेंगे. टू सेफ गार्ड्स अगेंस्ट द हज़ार्ड ऑफ द वेदर, डिसीज एंड पेस्ट, टू सिक्योर डेली रिक्वायरमेंट लाइक द पल्सेस, ऑयल सीड्स, फाइबर्स एटसेट्रा, टू गेट बैलेंस केटल फीड. And next, in order to obtain the maximum benefit from the subsidiary crop mixed with the main crop, it should have the following characteristic: not abstract the growth of the main crop, mature earlier or later than of the main crop as we discussed. जो मेन क्रॉप हम सोइंग करते हैं उससे पहले उसका ग्रोथ होना चाहिए और उसका अर्लियर उस मेच्योर हो जाना चाहिए और उसके अदर देन उसके बाद मेच्योर होना चाहिए. Preferably be legumes, have a different growth habits and nutrient requirement, have different rooting depth and the ramification not be very existing in the climatic requirement. Now companion cropping. Different crop are sown in the different rows like 6 to 8 rows of cotton, 2 to 3 lines of tuar. It's like 2-3 बाद में 2-3 लाइन दूसरे क्रॉप की और 1-2 लाइन दूसरे क्रॉप की. ऐसे हम कंपेनियन क्रॉपिंग ले सकते हैं. उसमें क्या गार्ड क्रॉप और एग्यूमेंटिंग क्रॉप जो सेफली क्रॉप को रखते हैं वैसे हार्डवुड टाइप ऑफ क्रॉपिंग वी कैन टेक इन गार्ड क्रॉप. ग्रोइंग हार्डली ऑफ थॉर्नी क्रॉप just like mesta, safflower around the main crop like jowar and wheat. Augmenting crop growing subgroup augmenting to maintain the yield of main crop और jowar और cowpea. तो एक क्रॉप आपका फेल हो जाता है तो दूसरा क्रॉप की वजह से आपकी मेंटेन हो सकती है इकोनॉमिक्स.
Now intercropping, growing of two or more crop simultaneously on the same pieces of land or a field. There is a crop intensification is both in both the time and the space dimension. There is a intercrop competition during all or part of the crop growth. एक क्रॉप हमने सोइंग किया है, उसके बीच में जो स्पेस है उसके अंदर हम दूसरा एक क्रॉप सोइंग करेंगे. जो मेन क्रॉप है वो अर्ली मैच्योरिंग हो जाएगा, देन आफ्टर जो बीच में हम इंटरक्रॉपिंग करते हैं वो उसके बाद मैच्योर होगा. तो पहले क्या होगा, मेन क्रॉप है उसको हम कल्टीवेशन कर लेंगे, बाद में जो इंटरक्रॉप हमने किया है उसका कल्टीवेशन उसके बाद करेंगे. तो एक के साथ हम दो क्रॉप इजीली ले सकते हैं. एडवांटेज ऑफ इंटरक्रॉपिंग, बेटर यूज ऑफ ग्रोथ रिसोर्सेज इंक्लूडिंग लाइट, न्यूट्रिएंट एंड वाटर. जो जमीन में न्यूट्रिएंट है, वाटर है, एक साथ दोनों प्लांट एक तरीके से ले सकते हैं. सस्पेंशन ऑफ द वीड्स, सप्रेशन, रिड्यूस प्लांट एंड द डिसीज इंसिडेंसी, ईल्ड स्टेबिलिटी, ईल्ड को हम अच्छी तरह से स्टेबल रख सकते हैं. इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी, दैट इज इम्प्रूवमेंट ऑफ द सोइल हेल्थ एंड एग्रो इकोसिस्टम. अदर like physical support of the one crop to another and the home gardening leading to a more puriform food supply is a good example of the realization of the intercropping advantage. Now disadvantage, it is a labor intensive, क्योंकि उसमें लेबर ज़्यादा चीता है और वेरी इंटेंसिवली रहता है. कंट्रोल ऑफ द पेस्ट एंड डिसीज और केमिकल वीड्स कंट्रोल में भी डिफिकल्ट. इंटरक्रॉपिंग किया है तो उसमें वीड कंट्रोल करना डिफिकल्ट रहेगा और स्प्रेइंग करना है इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का, वो भी एक डिफिकल्ट प्रोसेस रहेगी. मैकेनाइजेशन इज डिफिकल्ट टू द रियलाइजेशन. जो कल्टीवेशन करना है इंटरक्रॉपिंग किया है मगर इंटर कल्टीवेशन करने में हमको डिफिकल्टी रहेगी, क्योंकि उसकी स्पेस है वो मेन क्रॉप की है 2 मीटर और 1 मीटर, उसके अंदर हम दूसरा क्रॉप सोइंग करते हैं तो उसके स्पेस बहुत कम हो जाती है. इसकी वजह से हम इंटर कल्चर और इंटर कल्टीवेशन भी नहीं कर सकते. डिसएडवांटेज बाय द एडवर्स कॉम्पिटिटिव इफेक्ट और बाय एलोपैथी. जो एलोपैथी टाइप ऑफ क्रॉप है तो वो भी मेन क्रॉप को नुकसान करते हैं. जो उसमें से ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं तो वो केमिकल की वजह से मेन क्रॉप को भी प्रॉब्लम हो जाते. वैसे कोई वीड्स है तो वीड्स में से कोई ऐसा केमिकल रिलीज होता है, वो वीड्स की वजह से मेन क्रॉप है उसको भी उसका नुकसान होगा और हमारी प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगी. Now difference between intercropping and mixed cropping. Here comparison between intercropping and mixed cropping. First one is the main object is utilize the space left between two rows or a main row in mixed cropping to get at last one crop under favorable condition. More emphasis is given to a main crop. All crop are cared equally. There is a no competition between both crop. There is a competition between ऑल क्रॉप ग्रोइंग, क्योंकि एक साथ हम मिक्स क्रॉपिंग में जो 2-3 क्रॉप हम सोइंग करेंगे एक साथ में ही ब्रॉडकास्टली हम सोइंग कर देंगे. इसकी वजह से उसकी कंपटीशन भी बढ़ती जाती है. इंटरक्रॉपिंग आर ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन एंड आर हार्वेस्ट मच अर्लियर देन द मेन क्रॉप. एज वी डिस्कस, जो मेन क्रॉप हम सोइंग करते हैं वो उससे पहले या उसके बाद हम हार्वेस्ट कर सके ऐसा हमारा इंटरक्रॉप होना चाहिए. द क्रॉप आर ऑलमोस्ट ऑफ द सेम ड्यूरेशन. Sowing time may be same or different. It is the same for all crop. Crop are sown in different row without affecting the population of main crop when the sown as sole crop. Either sown in the row or mixed without consideration the population. Now relay cropping. It refers to planting or succeeding crop before the harvesting. The preceding crop like as relay race, where a crop hand over the hand to next crop in quick succession. तो उसमें क्या होगा रिले क्रॉपिंग में कि आपने एक क्रॉप सोइंग किया है तो वो क्रॉप जब हार्वेस्टिंग टाइम पे पहुंचेगा 2-3 के 5 के 7 दिन या 1 और 2 वीक के बाद आप हार्वेस्टिंग करोगे तो उससे पहले दूसरा क्रॉप आपको सोइंग कर देना है. एक क्रॉप हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हुआ और दूसरा क्रॉप को आपने सोइंग किया, वो बोलते हैं रिले क्रॉपिंग. तो यहाँ पे ये मेज क्रॉप है वो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो गया है तो उसके बीच में दूसरा क्रॉप हमने सोइंग कर दिया तो एक क्रॉप हार्वेस्ट होगा और दूसरा क्रॉप का अच्छी तरह से ग्रोथ हो जाएगा. नाउ एडवांटेज इज getting one time more production suitable for the monocrop zone like Sundarban region. No plowing required, save a lot of money, less amount of water is needed, environmental friendly farming technique. एक साथ हम 2 क्रॉपिंग मिक्स फार्मिंग करेंगे, इंटरक्रॉपिंग करेंगे
तो उसके साथ एले क्रॉपिंग में है तो उसके साथ हम एक साथ वाटर क्रॉप को दे सकेंगे। तो हम सोचते हैं कि एक क्रॉप में 6 या 7 टाइम हमको इरिगेशन देना है, तो वो टाइम पे 5 टाइम आपने इरिगेशन दिया, तो छठा और 7वां इरिगेशन आपका बचा है, तो उसके टाइम पे इंटरक्रॉपिंग आपका रिले क्रॉपिंग में लग जाएगा। मेन क्रॉप हार्वेस्टिंग टाइम पे है, तब आप दूसरा क्रॉप सोइंग कर देंगे। तो मेन क्रॉप को जब पानी देना है, उसके साथ साथ आपने जो रिले क्रॉपिंग में इंटरक्रॉप किया है उसको भी अच्छी तरह से पानी दे सकोगे और आपका वाटर भी अच्छा खासा बच जाएगा। इंक्रीज सोइल फर्टिलिटी थ्रू नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया। डिसएडवांटेज, रिक्वायर 20% मोर सीड देन द यूजुअल, क्योंकि उसमें हमको रिले क्रॉपिंग में सोइंग करना है तो उसकी स्पेस भी कम करनी पड़ेगी और उसके साथ साथ उसका सीड रेट भी ज़्यादा चाहिए। एज द प्लांट ग्रोन जिगजैग समटाइम्स द नीड मोर लेबर्स इन सम एरियाज ऑफ द सुंदरबन इज फेल्ड एज देयर वॉज नो स्कोप फॉर द इरीगेशन एंड देयर वॉज नो रेन फ्रॉम द September to March. Ratoon cropping or ratooning, it's refer to reversing a crop with the regrowth coming out of the roots of stalk after harvested of the crop. Like sugar cane है और ज्वार है, सोरगम है, तो उसमें क्या होता है, आप कट कर दो क्रॉप को, तो उसके बाद वही सूट है, वही आपका स्टॉक है, उसमें से दूसरा रीजनरेट फिर से दूसरा प्लांट उसमें से ही ग्रोथ होता रहेगा। जैसे ल्यूसन है तो वो फोडर के लिए हम यूज़ करते हैं, तो ल्यूसन को एक बार काटते हैं, उसके बाद फिर से वही रूट में से दूसरा ल्यूसन का प्लांट अच्छी तरह से तैयार होता है। तो वैसे हम 2, 3, 4 बार कल्टीवेशन भी अच्छी तरह से कर सकते हैं, वो है रटून क्रॉपिंग। नाउ एले क्रॉपिंग is the cultivation of food, forage or specially crop between row of trees. It is a large variation of the intercropping or companions planting conducted over the longer time scales. Ele croppings can provide profitable opportunity for the row crop farmers, hardwood, timbers growers and nut growers. तो उसमें क्या है कि हार्डवुड टाइप के जो प्लांट है, ट्रीज टाइप के प्लांट है, उसको हमने सोइंग किया है रो में, तो वो प्लांट के बीच बहुत जगह रहेगी, तो वो ज़मीन है, वो स्पेस है, तो उसको फेल ना होए और ऐसे पड़ी ना रहे, इसकी वजह से हम उसके अंदर इंटरक्रॉपिंग करते हैं। और लाइक यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ जो हार्डवुड टाइप प्लांट लगा है और उसके नीचे दूसरा क्रॉप लगा दिया है, ये हार्डवुड टाइप प्लांट है, उसके नीचे दूसरा क्रॉपिंग कर लिया है। तो एक के साथ जब ये हार्डवुड टाइप के प्लांट है वो तैयार हो गए, उसके साथ साथ 2-3 बार हम इंटरक्रॉपिंग भी कर सकेंगे, वो है एले क्रॉपिंग। Now monocropping or monoculture, it refer to a presence of the single crop in the field. This term is often used to refer to the growing the same crop years after year in the same field. This practicals is better described as the continuous cropping or a continuous monocropping. Multi-cropping, 2 or more crops are grown on the same field in 1 year. Intensification of the cropping is in temporal and the spatial dimension. They are like sequential cropping, growing 2 or more crop in the sequence on the same field in a year. The succeeding crop is sown planted after the preceding crop has been harvested. Crop intensification is only in the time dimension and there is no intercropping competition. Some variation of the sequential cropping are double cropping, triple cropping, quadrate cropping and relay cropping as we discussed. Sequential cropping, growing to a crop per year in sequence in the practice of the planting, and second crop is immediately following the harvest of the first crop. Thus the harvesting 2 crops from the same field in the 1 year. This is the case of multiple cropping which requires as the season long enough and crop that mature quickly enough to allow to harvest in 1 year. ट्रिपल क्रॉपिंग, ग्रोइंग 3 क्रॉप पर ईयर इन सीक्वेंसली, एक ईयर में मीन्स हम तीनों सीजन में 3 क्रॉप शॉर्ट ड्यूरेशन वाले ले सकते हैं, वो है ट्रिपल क्रॉपिंग। क्वाड्रेट क्रॉपिंग, एक साल में 3 से ज़्यादा मीन्स 4 क्रॉप हम एक साल में ले सकते हैं, ग्रोइंग ऑफ 4 क्रॉप पर ईयर इन ए सीक्वेंसली। Relay cropping is significant part of the life cycle of the second crop, overlap with the cropping cycle of the first crop. Thank you very much.